Hello students, good morning. Myself Dr. D. Krishna with today's topic class ABs. ABs means birds. All types of birds are included in class ABs. Okay, and ABs found in different types of habitat on land, in air or in water. It means terrestrial, aquatic and aerial. Okay, ABs means all birds found in all continents, seas and islands. As for example, finches birds are present in Galapagos Island. गैलापागोस आइलैंड में फिंचेज बर्ड्स मिलता है जो कि डार्विन का एक्सपेरिमेंट साइट था. ओके, एंड यू नो सी बर्ड्स, एग्जांपल ऑफ सी बर्ड पेंगुइन. पेंगुइन इज सी बर्ड. नेक्स्ट, अ स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ornithology. A study of bird is called ornithology, and Dr. Salim Ali was the famous ornithologist of India, and also called Birdman of India. इन्होंने बहुत सारा अपना एक्सपेरिमेंट बर्ड्स पर किए थे और इनको नाम दिया गया बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ओके, एंड बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड feathered bipeds or glorified reptiles, also called glorified reptiles or feather means पंख, wings. feather bipeds, bipeds locomotes with the help of two legs and having feather, so it is also called feathered bipeds. and glorified reptiles means reptiles में कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्रिएट हो गया, तब वह बन गया बर्ड्स. ओके, बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड. सॉरी, इसके पहले जो भी आप क्लास देखे थे एम्फीबिया, पीसेस, ठीक है, सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल था. लेकिन इन वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स ऐसा क्लास है, ये भी फर्स्ट क्लास है जहां से वार्म ब्लडेड एनिमल शुरू होता है. सो इट इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट to have warm blooded. Warm blooded means body temperature is constant. Body temperature is constant. और पूरे वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर है तो वह एबीज और बर्ड्स का है. पूरे वर्टिब्रेट्स में जनरली टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट. 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बॉडी टेम्परेचर होता है. ठीक है ना. सो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर इज इन क्लास एबीज और बर्ड्स. बॉडी शेप, a streamline, divided into
head, neck, trunk, and tail. Body divided into 4 parts: head, neck, trunk, tail. Okay, neck is long and flexible. It means easily movable. वह आसानी से अपने नेक को वह घुमा सकता है. So long is neck and flexible. Okay. Next. Body is covered by feather. पूरे बॉडी पर फीदर होता है. और फीदर का काम क्या है? एक काम तो सिंपल से भी जानते हैं, उड़ना, फ्लाई. एंड फीदर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और ऑल्सो प्रोवाइड लाइट वेट ऑफ द बॉडी. इट कीप्स वार्म एंड मेक बॉडी वेट लाइट. Also happens like. And feather is modified epidermal scale. In class reptiles, body is covered by scales, and that scales are modified into feather in case of class aves. So due to presence of feather, that is modified scale, feather is modified scale, it also shows एंसेस्ट्री ऑफ रिप्टाइल्स. इसी के कारण ऐसा माना जाता है कि एवीज का ओरिजिन इवोल्यूशन रिप्टाइल से हुआ है. सो फीदर इज मोडिफाइड एपिडर्मल स्किल्स. ओके. स्किन इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर. नो एनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन ऑफ होल बॉडी बट एट द टेल रीजन. Tail region is also called europygium. Tail region is also called europygium, and at tail region glands are present. और glands का नाम है while glands और preen glands. while और preen glands. while और preen glands secretes oily substance that lubricates the feather. Okay. फीदर को साफ करने के लिए, फीदर एक दूसरे से आपस में चिपकने से रोकने के लिए वायल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स से वायली सब्सटेंस सीक्रेट होता है. सीक्रेट्स वायल सब्सटेंस टू लुब्रिकेट्स द फीदर. ओके. नेक्स्ट. जनरली 2 pairs of limbs are present. 1 pair hind limb, 1 pair forelimb, other is hind limb, and forelimb is modified into wings. Forelimb is modified into wings that helps in fly. 4 limbs are modified into wings. Okay. And wings are worked by flight muscles, and that flight muscles is attached with long sternum, ventral long bone. In case of birds, sternum is also called keel or carina. आगे देखेंगे कील और कैरिना. तो कील और कैरिना से अटैच है फ्लाइट मसल्स. विंग्स आर वर्क्ड बाय फ्लाइट मसल्स अटैच्ड टू लॉन्ग स्टर्नम. लॉन्ग स्टर्नम ऑल्सो कॉल्ड कील और कैरिना. ओके. एंड नेम ऑफ फ्लाइट मसल्स: पेक्टोरिस माइनोरा, pectoris majora. These are the name of flight muscles that are attached with sternum, keel और carina. और इसी मसल्स के हेल्प से बर्ड्स फ्लाई करता है. ये तो हुआ फोर लिम्स. हाइंड लिम्स इज ऑल्सो एडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. अलग अलग बर्ड्स में हाइंड लिम्स का अलग अलग फंक्शन है. Hind limbs are adapted for perching, barking, swimming, etc. It performs different types of function. And in hind limbs, epidermal scales are also present. Hind limbs are covered by scales or epidermal scales. Okay. Next,
elementary canal. Elementary canal digestive system is complete. Elementary canal complete. Elementary canal complete and presence of additional chamber in elementary canal. Some additional chambers are present और वह चैम्बर 2 है, क्रॉप एंड गिजार्ड. क्रॉप helps in a storage of ingested food and gizzard helps in mastication. In gizzard, mastication of food takes place with the help of some stone particles also. बर्ड्स फूड में कुछ स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स भी लेता है. उससे 2 बेनिफिट है. एक बेनिफिट तो गिजार्ड में फूड का मास्टिकेशन हो रहा है और दूसरा बेनिफिट है स्टोन पार्टिकल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट. जो भी एग लेइंग बर्ड्स है तो एग लेइंग कंडीशन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑफ द एग कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड. दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाई स्टोन पार्टिकल्स और स्मॉल स्टोन पार्टिकल. तो कुछ फूड में वो स्टोन पार्टिकल भी लेता है. उसका 2 फंक्शन, एक मास्टिकेशन में, दूसरा वो कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स भी माना जाता है. ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ पिजन, pigeon also secretes pigeon milk and pigeon milk secreted by male and female both individual. अब pigeon milk क्या हो? मिल्क नहीं है, नाम दिया था pigeon milk आफ्टर मास्टिकेशन और स्टोरेज. फूड क्रॉप में स्टोरेज हुआ, गिजार्ड में मास्टिकेशन हुआ. तो जब मास्टिकेट कर जाता है तो मास्टिकेट करने के बाद वह जूसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फिर से बाहर आता है और वो अपने चाइल्ड को नरिश करता है. उसी का नाम दिया जाता है पिजन मिल्क. ओके, सो पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल बोथ. और पिजन मिल्क मिल्क नहीं है बल्कि वह क्रॉप का सिक्रीशन है. पिजन मिल्क क्या है? क्रॉप का सिक्रीशन है. इसी इसको हम पिजन मिल्क के साथ साथ क्रॉप मिल्क भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आगे देखें. 2 एडिशनल चैम्बर की हमने बात किया, क्रॉप और गिजार्ड. क्रॉप इज मोडिफाइड एसोफेगस. Crop is modified esophagus and responsible for storage of food. Okay, and elementary canal opens in cloaca. Cloaca means common cavity. Cloaca opens outside the body through cloacal aperture. Okay, तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का सिंगल चैम्बर है, दैट इज कॉल्ड क्लोएका. एंड इन बर्ड्स 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट. क्लोएका इज 3 चैम्बर्ड. याद रखना इसको, क्लोएका इज 3 चैम्बर्ड, ओनली फाउंड इन एबीज. नेक्स्ट, skeletal system. Exoskeleton consists of feather, feathery exoskeleton. Endoskeleton consists of bone, it means bony endoskeleton. Okay, and long bone is hollow. Long bone is hollow and hollow bone is called pneumatic bones. And hollow is due to presence of air filled cavity. Bone के अंदर एयर से भरा हुआ कैविटी होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी, एयर फिल्ड कैविटीज, बोन इज लाइट वेटेड. यह जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सारा का एक ही एम है, बॉडी वेट को कम करना, जिससे कि उसे फ्लाई में आसानी हो, उड़ने में आसानी हो. ये सारा कैरेक्टर, सारा स्केलेटल सिस्टम का फीचर्स है फ्लैट के कारण. ठीक है. नेक्स्ट, स्कल इज मोनोकोंडाइलिक मीन्स सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल दैट इज अटैच्ड विथ वर्टिब्री. And centrum is heterocylous. Heterocylous means serrate like structure, teeth like structure at both ends. पहले बताया जा चुका है. So centrum is heterocylous, skull is monocondylic, single occipital condyle.
लास्ट 4 टेल और कॉर्डल वर्टिब्री। वर्टिब्री मीन्स स्मॉल बोन्स ऑफ बैकबोन। तो नेक से लेकर के, हेड से लेकर के जो पीछे टेल तक वर्टिब्री है, तो लास्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड कॉर्डल वर्टिब्री और टेल वर्टिब्री। 4 कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म पाइगोस्टाइल। लास्ट 4 टेल और कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल। इट मीन्स वर्टिब्री को भी हम पोजीशन के आधार पर अलग अलग नाम देते हैं। वर्टिब्री प्रेजेंट इन नेक रीजन कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री, देन thoracic vertebrae, cervical vertebrae, thoracic vertebrae, then lumbar vertebrae, sacral vertebrae, caudal vertebrae. ओके, सबसे ऊपर नेक रीजन में सर्वाइकल, थोरैक्स रीजन में थोरैसिक, नीचे लैम्बर, सैक्रल, कॉर्डल। अब देखिए लिखे हैं पोस्टेरियर थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड टुगेदर। थोरैसिक का पीछे वाला वर्टिब्री, बाकी लंबर और सैक्रल सभी मिलकर के एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड सिनसैक्रम। सिनसैक्रम ऑल्सो फाउंड इन एबीज। ओके, सिनसैक्रम मीन्स फ्यूजन ऑफ थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री, सभी मिलकर के एक बोन का फॉर्मेशन किया। सभी वेट को कम करने का ही एडेप्टेशन है। नेक्स्ट, sternum is large, also called कील और कैरिना। swollen basal part, बर्ड्स का अगर नीचे का पार्ट देखेंगे, ये पार्ट देखेंगे तो पॉइंटेड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, पॉइंटेड। सो दैट swollen basal part of a sternum is called कील और कैरिना। उसका नाम क्या देंगे? कील और कैरिना। सभी फीचर्स को याद रखना है बर्ड्स के लिए, एबीज के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, इन नेक रीजन यहां एक बोन रहता है, इस बोन का नाम है कॉलर बोन। कॉलर बोन ऑल्सो कॉल्ड क्लैविकल बोन। कॉलर बोन और क्लैविकल बोन। इन केस ऑफ बर्ड्स, 2 कॉलर बोन्स एंड इंटर क्लैविकल बोन, दोनों को जोड़ने वाला इंटर क्लैविकल बोन। तो कॉलर बोन मीन्स क्लैविकल, क्लैविकल एंड इंटर क्लैविकल बोन फ्यूज टुगेदर। 2 बोन एक इधर दोनों फ्यूज कर गया और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? भी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्स भी शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बिस बोन। कॉल्ड बिस बोन, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्कुला। बिस बोन और फॉर्कुला और ऑल्सो कॉल्ड मेरी थाउट बोन्स। फॉर्कुला, बिस बोन और मेरी थाउट बोन्स दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गर्डल्स। उस गर्डल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उस बोन का नाम है फॉर्कुला, ऑल्सो कॉल्ड बिस बोन, ऑल्सो कॉल्ड मेरी थाउट बोन्स। ओके, नोट कर लीजिए इसको, मेरी थाउट बोन्स। इट मीन्स क्लैविकल कॉलर बोन, क्लैविकल कॉलर बोन एंड interclavicle bone fuse together and forms V-shaped bone called फॉर्कुला और विसबोन और मेरी थाउट बोन, 3 नाम रखेंगे। ठीक है, फॉर्कुला, बिसबोन एंड मेरी थाउट बोन, दीज आर द consist by fusion of clavicle and interclavicle bone. Okay, and इसका फंक्शन क्या होगा? It acts as a spring between 2 girdles. 2 जो गर्डल्स है ऊपर वाला गर्डल्स, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल से फोर लिम्ब अटैच होता है और पेल्विक गर्डल से हैंड लिम्ब अटैच होता है। तो फोर लिम्ब विंग्स के लिए है तो पेक्टोरल गर्डल।
ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल के बीच स्प्रिंग का काम करता है और इसी के सहारे विंग्स का मूवमेंट होता है, फोर लिम्स का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट फीचर पायगोस्टाइल, जनरली बताया मैं, पायगोस्टाइल, कील, फॉर्कुला, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स एंड दैट डेवलप्स फॉर फ्लाइंग। जो भी हुआ ये डेवलपमेंट एडेप्टेशन किसके कारण? फ्लाइंग के कारण। लेकिन जो बर्ड्स फ्लैटलेस है, नहीं उड़ता है, उसमें ये डेवलप नहीं होगा। मैं लिखा हूं पायगोस्टाइल, कील एंड फॉर्कुला आर अब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्योंकि यह जो एडेप्टेशन है फ्लाई के लिए है और जो फ्लाई नहीं करता उसका ये कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन थ्रू स्पंजी लंग्स एंड रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। ऊपर से जब एलिमेंट्री कैनाल और रिस्पायरेटरी सिस्टम पहले अलग अलग होता है तो एक को हम बोलते हैं नेसल कैविटी, दूसरे को बोलते हैं ओरल कैविटी, दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट में गया जिसका नाम है फेरिंक्स। फेरिंक्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, one is windpipe, other is food pipe. Food pipe is called esophagus, windpipe is called trachea, and trachea again divided into two parts, that is called bronchus or bronchi, that enters in each lungs. दो ब्रोंकस अलग अलग लंग्स में चला गया। तो ट्रैकिया और ब्रोंकस के जंक्शन पर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है सिरिंग्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स। और यही अगर अगले में जाएंगे, बर्ड्स के बाद मैमल में आते हैं, तो मैमल में उसका नाम हो जाता है लैरिंग्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन मैमल इज लैरिंग्स, बट इन एविस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स। ओके, सिरिंग्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, बट इन सिरिंग्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट। साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन ट्रू वोकल कॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। Syrinx present at the junction of trachea and bronchus do not have true vocal cords. True vocal cord absent in birds. Next, circulatory system. Heart is 4 chamber, 2 auricle, 2 ventricle, no any accessory chambers means sinus venosus and truncus arteriosus are present. और मैं बताया था कि जिसमें भी हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन हो गया, वैसे एनिमल में रीनल पोर्टल सिस्टम का फंक्शन घट जाता है और वह अब्सेंट या पुअरली डेवलप हो जाता है। इट मीन्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, हेपेटिक इज रिलेटेड विथ लीवर, व्हाइल रीनल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिलेटेड विथ किडनी। ओके, आरबीसी आर निकुलेटेड। आरबीसी कैसा होगा? निकुलेटेड होगा। और मैं बताया कि जो भी बर्ड्स है उसका लॉन्ग बोन हॉलो होता है। हॉलो होता मतलब बोन के अंदर कुछ है नहीं। ऐसे इन केस ऑफ मैमल्स लॉन्ग बोन इज फिल्ड विथ मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो, और बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स का आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बर्ड्स के केस में लॉन्ग बोन इज हॉलो, हॉलो बोन है। इट मीन्स बोन मैरो इज नॉट प्रेजेंट। और जब बोन मैरो नहीं है तो फिर आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा? सो इन केस ऑफ बर्ड्स और एबीज आरबीसी आर फॉर्म्ड इन लीवर। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा? लीवर में होगा। ओनली राइट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग। हार्ट से जनरली अगर हार्ट की बात करें, 4 चैम्बर है हार्ट का, तो लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड जिस के द्वारा निकलता है, आर्टरी के द्वारा, that is called aorta. This is called aorta, and aorta divides into 2 parts, left aorta and right aorta, and these aorta supply blood in whole body parts. Okay, in case of birds only right aorta is present. एक ही aorta से वो काम चलाता है, 2 रहेगा, वेट बढ़ेगा, वेट को कम करना है, एक ही aorta होता है। So only right aortic arc is present. Excretion through kidney, excretory material, uric acid. Clear? Nervous system, brain is well developed, और ब्रेन में सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बैलेंस उड़ने में हेल्प करता है, तो सेरिबेलम सबसे ज्यादा डेवलप होता है।
ऑल्फैक्टरी लोब जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह बर्ड्स में पुअरली डेवलप्ड होता है। लेकिन एक बर्ड्स है कीवी, इन कीवी a smell detecting capacity is present due to developed olfactory lobe, and in other birds olfactory lobe is poorly developed, so no smelling capacity present in general birds. Cranial nerve का नंबर 12 pairs, cranial nerve का नंबर 12 pairs, olfactory, optic, oculomotor, trigeminal, trochlear, abduction, facial. Okay, these are the different types of cranial nerves. So 12 pair of cranial nerves. Next, sense organ and reproductive system. Next, sense organ, eye, ear present, eye and nictitating membrane present. Nictitating membrane is membrane like structures that covers the whole eye. In our eye, in case of human, well developed eyelids are present, so nictitating membrane is vestigial organ present in body but functionless, and this type of organ is called vestigial organ. So nictitating membrane is vestigial organ in case of human, but in aves it is functional. Okay, vision is monocular. vision कैसा है तो monocular vision है. comb like structure, a special structure present that is called pecten. Pecten is a special structure present in eye near the blind spot. Near the blind spot, it is highly vascularized that supply blood to the eye, and it also helps in acute and telescopic vision. दूर की भी वस्तु को आसानी से साफ साफ दिखाई देता है बर्ड्स को, और इस विजन का नाम देते हैं एक्यूट और टेलीस्कोपिक विजन. एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट पिन्ना अब्सेंट. एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट पिन्ना अब्सेंट. एक्सटर्नल जैसे कि अगर देखें ईयर कंसिस्ट बाय 3 पार्ट्स, डिस्टेंस, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल, ये 3 पार्ट में ईयर है. इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर. तो एक्सटर्नल में आउटर पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना, दिस इज कॉल्ड पिन्ना. सो पिन्ना इज absent and external ear present, and this is called external auditory canal. In case of birds, external auditory canal opens on the surface. हम लोग में कैनाल के बाहर भी क्या है, पिन्ना है, लेकिन बर्ड्स के केस में पिन्ना नहीं है, यही एक्सटर्नल ईयर ही सरफेस पे खुलता है. सो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, पिन्ना absent. And in middle ear only one bone, स्टेप्स और columella is present. ह्यूमन के केस में 3 बोन मिलेगा, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, लेकिन यहां सिर्फ ओनली 1 ईयर ऑस्किल, columella और स्टेप्स present in middle ear. Okay, organ of Corti present. Organ of Corti is the part of internal organs that helps in hearing and balancing. दोनों में काम करता है, तो organ of Corti ईयर में प्रेजेंट हो. Reproduction, unisexual, sexual dimorphism present. It means male and females are differentiated to each other easily by external characters, by external features. दोनों को देख के आसानी से पहचाना जा सकता है, तो हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्टर फंक्शनल. इन फीमेल ओनली 1 ओवरी एंड ओविडक्टर फंक्शनल. एक ही होता है, दूसरा नॉन फंक्शनल मींस पुअरली डेवलप्ड, इल डेवलप्ड. कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट. अब कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है तो मेल से फीमेल में गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो ट्रांसफर होगा क्लोएका के थ्रू. सो गैमीट ट्रांसफर थ्रू क्लोएका. नो एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स, एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. 4 का नाम बताया गया है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योक-सैक. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, so the birds is also called amniotes.
इसके पहले रेप्टिलिया भी था, रेप्टिलिया के पहले नहीं था। रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमेलिया आर कॉल्ड एमनियोट्स बिकॉज इन दिस थ्री क्लास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एलेंट्वाइस, yolk sac, chorion, एलेंट्वाइस, yolk sac, amnion एंड कोरियन आर प्रेजेंट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। आज हमने बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एबीज और बर्ड्स।